ये हुआ कि शुरू में पहले पोकलैंड से जेसीबी से मलबा हटा दिया जाएगा और इसका काम भी शुरू किया गया, लेकिन जैसे ही हटता था तो मलबा और ऊपर से और आता था, जितना हटता था उससे कहीं ज़्यादा ऊपर से आने लगा, तो वो अभियान हमारा नहीं चल पाया आगे। उसके बाद बड़े पाइप मंगाए हरिद्वार से और देहरादून से। शुरुआत में था कि ये पाइप तेज़ी से अंदर चले जाएंगे, लेकिन वो अभी अभियान ज़्यादा नहीं चल पाया, पाइप नहीं गए। फिर इंदौर से और हैदराबाद से ऑगर मशीन मंगाई गई, सेना के लोग उसको लेकर आए, वायुसेना लेकर आई और वो अभियान हमारा थोड़ा आगे बढ़ा। उससे एक उम्मीद बंधी कि जल्दी हम मजदूर भाइयों को अपने निकाल लेंगे, लेकिन 21 मीटर जाने के बाद वो मशीन भी जो है हमारी रुक गई। उसके बाद फिर वो अंदर से पूरी मशीन बाहर निकाली गई, फिर उसके अंदर जो सरिया इत्यादि था उसको काटा गया, फिर आगे काम बढ़ाया तो फिर तेजी से 34-35 मीटर तक बढ़ा। फिर जाकर वहाँ उसकी पिन टूट गई और मशीन भी पूरी तरह से आगर मशीनी पूरी तरह से डैमेज हो गई और वो हमारे लिए बहुत कठिन था। और बीच में 16 तारीख को जब तेजी से अभियान चल रहा था और एकदम से वाइब्रेशन हुआ और सारा काम बंद हो गया, वो भी बहुत झटका देने वाला था, लेकिन ईश्वर पर हम सबका भरोसा था। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार चूँकि वहाँ से हमको सबको हिम्मत दे रहे थे और पूरा भरोसा दे रहे थे कि नहीं जल्दी होगा, सब लोग प्रयास करते रहिए। तो उस काम को फिर हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो फिर जब ऑगर मशीन अंदर टूट गई, टूटने के बाद फिर बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया और उसके एक एक पंखों को काट कर पहले छोटा करने के बाद फिर कटर से आगे जाकर 1-1 मीटर करके उसको काटना, ये 2-3 दिनों का जो बड़ा समय था वो बहुत कठिन था। और ऐसे में लग रहा था कि हमारे मजदूर भाई जो अंदर हैं वो कहीं थोड़ा अपने को कमज़ोर महसूस न करें, इसलिए मैंने फिर दोबारा उनसे बात करी। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि आप 1 हफ्ता नहीं, आप 10 दिन तक भी कहेंगे तो हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप बिल्कुल हमारी चिंता मत करिए साहब, आप लोग अपनी चिंता करिए और आप बाहर का काम संभालिए, अंदर का काम हम संभाले हैं। तीनों लोगों ने, सबा अहमद, गब्बर सिंह नेगी और अखिलेश। CNN News 18, Anshul Singh is back with us on the broadcast. Anshul, we just heard Uttarakhand Chief Minister speaking about the challenges faced by the rescue teams there, how the machineries were brought in from different places, how they broke down while they were working on the progress of drilling through and making a passage for the workers. Just for the better perspective of our viewers, Anshul, we want to understand from you more about the breakthrough, the mega breakthrough technique, the rat hole mining. Could you just bring us more details about what exactly worked there? So yes, the rat hole mining was something that was the last option that was left with the rescuers. Remember, the state-of-the-art American auger machine failed to actually drill through and make that breakthrough that was being much awaited. However, the rat hole mining that was done, that was one technique that although is very, very dangerous, in fact has been banned by the National Green Tribunal because of the kind of intensity that it has, the kind of risk factor that it has. But yes, at this point when all the machines had failed, there was no other option but to manually go inside and then take out the debris one by one, inch by inch, making sure that the last 10 meters that were left over there, they were able to complete that last 10 meters in a record time of 26 hours. So you can imagine how much work, how much trouble, how much risk it must have, because an 800 millimeter diameter pipe inside that person going down, taking out debris one by one, sending the debris out inch by inch. So yes, a massive task at hand, but yes, the kind of motivation that these rat hole miners had, we spoke to them on CNN News 18 as well, and definitely the kind of motivation that these people had since day one, that is something that is really very commendable, and that is the reason why finally, after all the machines failed, we went back to square one and started from the manual drilling process, and that manual drilling process proved to be a massive success. In a very short span of time, a lot of debris was taken out. It was just the motivation that these workers had to make sure that the brothers who are stuck inside, they are taken out earliest and safely, because yes, all these are laborers, all these are workers, they know the pain that the family has if something untoward happens to them, because generally in such cases they are the only
bread earners of the family, and hence that was something that motivated all these people, and inch by inch they made sure that they get that breakthrough, post which all these people, the 41 people who were stuck inside for the last 17 days, they were taken out with safety by the NDRF and the SDRF teams. Right, Anshul, thank you so much for bringing us all those details and all those ground reports. We have some more reactions coming in on the same story. Let's take a look on that. मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम होती है इसमें फंसा था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुई, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे, और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। मुझे तो कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वहाँ पे कुछ उतना खास दिक्कत तो नहीं हुई। जैसे जो ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। खाना पीना हम लोग का जो है सो गिरने के बाद हम लोग को 10, 15, 20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई। उसके बाद जो पाइप था हम लोग का, पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई, उसी से हम लोग को खाना मिलता था। उसके बाद थोड़ा 10 दिन होने के बाद फिर बाहर से पाइप का एक जो व्यवस्था की गई, उससे हम लोग खाना, काजू, किशमिश, बादाम, रोटी, चावल, दाल जो भी मिला सही सलामत सब चीज की हम लोग को। परिवार सब ठीक है, अभी परिवार से बात हो रही थी, बाद में माइक लगाया था, उस माइक से हम लोग बात करवाई गई सब। जैसे मैं टनल के अंदर पहुंचा, उनका रिएक्शन इतना था कि जैसे मैं अंदर टनल के अंदर प्रवेश हुआ तो सबसे पहले मैंने उनको पूछा कि आप लोग कैसे हैं, पैनिक ना हो, हम एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है आपकी सहायता के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, कुशल मंगल थे कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें एक एक करके बाहर निकालेंगे। तो अपना उनका मानसिक संतुलन बनाने के लिए यहाँ से बोलते रहते थे कि हम आपके समीप पहुँचने वाले हैं, आप घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, आप धैर्य करें और धैर्य के साथ रहें। पता चला कि अनिल बाहर निकल रहा है, उस वक्त कैसा लगा? क्या मन में आया? मन में आया कि जब एक बड़ा बेटा गया है भाई, तो उन लोग बताइए कि जो ठीक है, आप हमारा भाई ठीक है, का वहाँ से बात करते हैं तो ठीक है। टनल में फसल हुआ है तो अब मेरा बेटा निकल गया 8:30 बजे, तो अब दवा का मांगेगा, प्रार्थना कर रहे हैं, अथी कर रहे हैं, तब वो लोग के अथी करेंगे। अब सब अथी जितना गछल उछल है अथी किया है, मुड़ हेट किया है, अथी किया है, तो उसको सब पर प्रसादी गिराएगा, अथी करेगा, सबके नहा धो के अथी कीजिएगा। अब वो आएगा तब अपने भतीजा आएगा तब, हाँ पूजा पाठ कीजिएगा। भतीजा ही अब अपना गांव ने आएगा तब ना, अब उधर है देखन तो निकल लाल है यार, हॉस्पिटल ने गया है, अब हॉस्पिटल से लाया है कि नहीं लाया है, कैसा ना है, नहीं पता नहीं चल रहा है। भगवान के दवा से बालक घर पहुंचा तो हम लोग खुश हैं, और खुश से परिवार खाना पीना बनाएंगे, बेटा के साथ में खाएंगे और सब अच्छा से रहेंगे। आज तो लग रहा है सब कुछ खुश खबरें ने देख रहे हैं कि वहाँ से निकल गया तो अब आइबे करेगा, अब आज आएगा या काल आएगा, अब जैसे कि उसका चिंता की है तो आइबे करेगा।